everyone, this is Dr. Mansi from Homeopathy 360, and I am back again with another session of Teach Beyond Boundaries with Homeopathy 360 in collaboration to HHL. Today we have Dr. Dinah Nai ma'am, speaker at HHL, and the topic for today's session is rare disease cured with homeopathic medicines. That's a very unique and a very interesting topic that we are going to learn today. And let me introduce Dr. Dinah Nai ma'am. She has passed BHMS from Rajkot Homeopathic Medical College in 2006. She has done MD Organ of Medicine from Anand Homeopathic Medical College in 2000. She is having teaching experience of over 12 years and currently working as professor in Gandhinagar Homeopathic Medical College and practicing homeopathy at Arogyam Homeopathic Clinic, Gandhinagar. She is also teaching her students on her clinic, sharing her expertise and her experience in the clinical check and handling the case. Today, it's our pleasure to have you, ma'am, on this platform. Thank and you, we are eagerly waiting. Thank you for this beautiful introduction. Thank you. I congratulate first VJN for spreading the fragrance of homeopathy across the world and bringing homeopaths together on this platform. And I'm thankful to BJN and HSF for providing me this platform and opportunity to share my case, and that is too on this auspicious day of Ganesh Chaturthi. So I would first brief about the case. I'll narrate a beautiful case. We'll give you a brief introduction. So this is a case of a physician living in Rajkot. He is having this rare disease called ischiofemoral impingement syndrome. And he was unable to sit in his hospital. He was seeing patient in his OPD standing. So this patient is my husband's friend. So one day my husband showed me in mobile, he Googled this disease and showed me that my friend Paras is having this condition and he's not reliving with conventional medicines. And then I asked him to take homeopathy. And in Rajkot, one of my senior is practicing there and asked him to go there. He is from the same native place. Means both were from the same town. But after 8 to 10 days, he called me for the treatment. So the entire history was taken on the phone call. So I have brief because it was taken in Gujarati. History was taken in the Gujarati. So I have tried to make it in an easier way to understand for you. I'm sharing my screen for the slides. Okay. Is it visible? Okay. Am I audible and visible? So let's start the presentation with Lord Ganesha's praying. May his wisdom, clarity, and learning guide us today. And gratitude to our master. The science he has given still holds true. Even if it is a rare condition, new disease, or so-called idiopathic diseases, we can still apply the same science and cure the patients. So once again, gratitude to our master. Because of his virtue, we all are here together. And the homeopathy, this science gave us lot of name, fame, gratitude because of this science.
where conventional medicines has got limitation in treating such disease condition. Homeopathy takes pride in curing this type of diseases or illness entirely from its roots and without leaving any side effects. So first, let's see what is this disease in brief. Ischiofemoral impingement syndrome. So what happens in this? The space between ischium and lesser trochanter is narrow and causing pain and discomfort. It can be congenital or traumatic, but the symptoms, if it is congenital, the symptoms develops in the middle age. So the clinical hip pain, buttock pain radiating to posterior thigh, worse on hip extension, adduction, external rotation, limb restriction. Sorry. And tenderness in gluteal region. So let's begin with the case conversation between me and patient. So first I have asked, how do you manage during this pain? कि जब आपको पेन होता है तब आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? So he said in OPD now I got used to seeing patient standing कि मैं खड़े खड़े ही पेशेंट देखता हूँ OPD में. I don't sit anywhere. If I come to your home, I lie down on sofa and talk. कि जैसे अगर मैं आया कहीं तो खड़े खड़े बात करता हूँ और अगर मैं आपके घर में आया तो सोफा पे लेट के बात करूंगा. अभी अभी स्लाइड नहीं दिख रही. Now you are not able to see the slide. You are on the first slide. I am stop sharing and again sharing it. Now, can you see the slide? I am changing it. Now, Dr. Mansi, દેખાય છે? Dr. Mansi? Hello. Can you see this slide of Master Hanuman? Yes, ma'am, I can see your screen. Next slide. Next slide अभी change नहीं हुआ मैम. Rare disease. नहीं, not now. Now. Can you आप see? next slide पे click करके Ischiofemoral impingement. नहीं मैम, सैमुअल हैनिमन वाली मास्टर वाली सर आप क्लिक करिए मैम. Yes. Now. Change નથી. એ તો બધું થાય છે. I may stop sharing and again I will open it in background.
Can you see now? Slide. Rare disease. Next slide. Finger. So you can see there is compression. So the space between ischium and lesser trochanter narrows and causing pain and discomfort. And this can be congenital, but symptoms develop in the middle age. And it can be post-traumatic or post-traumatic or post-surgical. Okay. So clinically, patient feels pain in hip, thigh, problems in adduction, extension, external rotation, and limping may be present, and tenderness in gluteal region. So let's see the conversation. So I have asked patient, how do you manage during this complaint? So he said that in OPD, now I used to see patients saying कि मैं खड़े खड़े ही patient OPD में देखता हूँ. I don't sit anywhere. If I come to your home, I just lie down on sofa and talk. कि अगर मैं आपके घर आया तो सोफे पे लेट के बात करूंगा. और recently I have seen movie in theater, but the seat was good. कि recently मैंने movie भी देखा theater में, तो लेट के seat अच्छी थी तो देखा. Then I have asked what comes to your mind during this disease. He said, feels negativity. Orthopedic said that it will heal in 2 months. कि उन्होंने बोला कि 2 महीने में ठीक हो जाएगा. In 2020 same problem. कि 2020 में भी मुझे same problem था, but that healed in within 3 days. कि वो 3 दिन में अच्छा हो गया था. So I was hopeful, but this time no medicine worked. Then first dose of steroid didn't help. Then second dose of steroid. So actually, he had taken IV, USG guided steroid was also given. USG guided steroid was also taken, but that didn't help. And he said, moreover, my favorite activity was 6 to 8 morning walk and exercise with family. कि जो सुबह का 6 से 8 का पीरियड था वो मेरे लिए सबसे अच्छा था, जहां मैं फ्रेंड्स के साथ एक्सरसाइज वॉकिंग करता था, जो मेरे पूरे दिन का बेस्ट पार्ट था. एंड नाउ it has stopped. So my nature is jolly and I used to make fun of others. कि मेरा एक मजाकिया स्वभाव था, तो मैं सबकी मजाक उड़ाता था. तो अब ये सब बंद हो गया, और मेरी कंडीशन क्या थी और अब ये कैसी हो गई. Then I have asked, how does it affects you? So patient said, not significant, but if it increases, and again have to take NSAIDs. कि अगर ये वापस बढ़ा तो मुझे NSAIDs लेनी पड़ेगी. If I do operation in which they remove lesser trochanter, but doctors are very rare who do this surgery. So anxiety about future. कि अगर ये ठीक नहीं हुआ, ऑपरेशन कराना पड़ा, तो पूरे मीन्स इंडिया में 2-4 गिने चुने डॉक्टर्स है जो ये ऑपरेशन करते हैं, और उसमें भी अगर सक्सेस नहीं हुआ, कुछ इनकंटिनेंस ये वो हो गया, तो उसकी एंजाइटी रहती है कि क्या होगा. मोस्ट ऑफ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स डोंट इवन नो दिस टर्मिनोलॉजी. कि बड़े सारे मीन्स मोर देन 70% ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को ये टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता है. feel I got this type of disease which has no such treatment. तो ये पेशेंट जैसे मेरे हस्बैंड से 2-4 बार फोन में बात की, तो हर बात उसका यही रहता था कि अरे भगवान ने दे देकर कैसा डिसीज दिया है, कि जिसकी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है. अगर ट्यूमर हो तो रिमूव कर ले, कीमो ले लेंगे, फ्रैक्चर हो तो 1.5 महीने में निकल आएंगे उसमें से बाहर. लेकिन इसमें तो करे तो क्या करे, डॉक्टर को खुद ही नहीं पता क्या. मीन्स ऑर्थोपेडिक डॉक्टर तो मुंह बिगाड़ते हैं ऐसा डायग्नोसिस सुन के. सो फिर मैंने बोला और बताइए, तो बोले नहीं ऐसे रूटीन तो मेरा चालू ही है. आई वेंट टू कर्नाटका की लकड़ी लेके, मीन्स हाथ में स्टिक लेके भी वो गए थे घूमने.
बट आई हैव रिड्यूस्ड गोइंग टू सोशल फंक्शन, कि मैंने सोशलाइजेशन कम कर दिया। IMA के फंक्शन में जाना, ऐसा सब। मैंने बोला क्यों? तो बोले कि उधर सब एडवाइस देते हैं कि ये करो वो करो, यहाँ दिखाओ वहां दिखाओ, ये इन्वेस्टिगेशन कराओ। अरे हमने सब कुछ कर ही लिया है। वी हैव डन एवरीथिंग। आई हैव सेंड MRI टू मुंबई, की मुंबई तक MRI भेजे है, सब कर लिया है। Then I have asked about walking hobbies. So he said walking, mountaineering, waterfall, bathing in river, reading Mahabharata, history, novel, newspaper, Google, new medical things, then Discovery Nature program. तो देखिए उसकी कितनी सारी मीन्स हॉबीज है। फील पीपल आर मेकिंग फन ऑफ मी एज अर्ली आई यूज टू डू इट विथ कि पहले मैं सबकी मजाक उड़ाता था, अभी ऐसा लगता है कि सब मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। In relative I hide, otherwise my house will be full of relatives and we don't have that time। कि मैंने रिलेटिव्स में किसी को नहीं बताया, लेकिन सब, क्योंकि सब पूछने के लिए घर पे आ जाता है, खबर पूछने के लिए, और हमारे पास टाइम नहीं होता है। देन आई फील गिल्टी दैट आई कांट डू, कि मैं कुछ कर नहीं सकता, उसकी ये गिल्टी रहती है। आई फील माई बॉडी इज सिमेट्रिकल, आई शुड नॉट हैव done this exercise and all for last 7 to 8 years, कि जो मैंने पिछले 7-8 साल में जो किया वो मुझे करना नहीं चाहिए था, क्योंकि वैसे भी मेरी बॉडी तो सिमेट्रिकली थी, ये सब चीजें मुझे करने की क्या जरूरत थी। आई शुड नॉट हैव डन दिस एक्सरसाइज इफ आई सी रिट्रोस्पेक्टिव, कि अगर मैं रिट्रोस्पेक्टिव सोचूं तो मुझे लगता है कि मुझे ये सब चीजें करने की क्या जरूरत थी, अच्छा ही था, मेरा बॉडी तो सिमेट्रिकली था। Feel irritated if patients are there, I can rest if patients are less। कि जब दर्द होता है ना, तब पेशेंट्स आते हैं तो लगता है कि कम रहे पेशेंट या फिर ना आए तो अच्छा रहता है। आई हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम सम फ्रेंड्स टू हेल्प मी इन दिस बट दे डिडंट, सो आई फील कि मेरी ये कंडीशन में मुझे थोड़ा ऐसा था, एक्सपेक्टेशन था कि मेरे कुछ फ्रेंड मुझे हेल्प करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। What do you do during the pain? So he said, I complain my wife कि दर्द हो रहा है, आज दर्द हो रहा है। मैं कभी रोया नहीं, लेकिन टेंशन ये रहता है that I got this disease and it's rare, if common we can get solution। In morning group they make fun of me, they walk 5-10 kilometers and I can't do anything। कि जो मॉर्निंग ग्रुप है ना, उसमें वो मेरी मजाक उड़ाते हैं, जो कुछ इतना चल नहीं सकते वो अभी 5-5, 10-10 किलोमीटर चलते हैं और मैं नहीं चल सकता। unable to sit and walk fast, के भी फास्ट चला नहीं जा रहा। then I asked how do you manage your work, so he said in OPD now I got used to see patients standing, I don't sit anywhere। okay, ये तो आई थिंक रिपीट ही हुआ है। देन मैंने आई आस्क्ड हाउ डू यू वर्क इन प्रॉपर टाइमिंग और इन ऑर्डर, की टाइम पर काम करना है तो नहीं नहीं, मैं तो लहरी लाला हूँ, मीन्स मैं तो ऐसा बिंदास बंदा हूँ कि जैसे मैं अपनी OPD का टाइम मैनेज कर लेता हूँ, 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता है, बट इतना कुछ मीन्स वो फास्टिडियस नहीं है, ऐसा मुझे बताया। देन सर्टेन मेडिको फ्रेंड्स, जो ये चीज क्या थी कि उनके 2 फ्रेंड थे क्लासमेट जिन्होंने लव मैरिज किया था, और वो दोनों कपल और ये साथ साथ में ही रहते थे, बाहर जाना हो, घूमने, मूवी देखने, बच्चे भी सबके बहुत ऐसे साथ में ही रहते थे, और उन दोनों का डिवोर्स हो गया। तो क्या हुआ कि वो जो उनका रूटीन जो लाइफ चल रहा था वो सब बंद हो गया, घूमना जाना, फन मस्ती मजा। एंड दैट फ्रेंड वाज ऑर्थोपेडिक डॉक्टर and his complaint is also related with ortho, and he was expecting कि वो फ्रेंड मुझे हेल्प करेगा, एंड उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उसको उसने ये बताया नहीं, लेकिन आई वॉज नोइंग ऑल दिस, कि वो चीज उनको ज्यादा असर कर गई, कि उसने यही बताया कि कुछ फ्रेंड्स से एक्सपेक्टेशन थी कि ये कुछ करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया।
देन मेरे पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि अरे डॉक्टर साहब आप अभी भी खड़े हैं। तो मैं हंसी में बोल देता हूँ कि अभी मैं लाइफ टाइम खड़ा ही रहूंगा, क्योंकि बैठता हूँ तो पेन बढ़ जाता है। और पेशेंट हंस देता है। तो वो कैसा कैजुअलीनेस, उसको कुछ एम्बेरसिंग नहीं है कि पेशेंट के सामने ये क्या बोलेगा या मुझे तकलीफ है। देन डॉक्टर asked what changes in his behavior do you observe during pain। तो ये मैंने उसकी वाइफ से पूछा कि पेन के दौरान उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं। He said I can get from his face as he enters the home, कि घर पे आते मुझे उसका चेहरा देख के ही पता चल जाता है कि आज उसको दर्द है। तो मैं बच्चों को हिंट दे देती हूँ। और ये ऐसा बोलते हैं कि व्हाट हैपन्स इफ आई डू ऑपरेशन करे या तो फिर क्या होगा। ही इज मोर कंसर्न अबाउट फ्यूचर रादर पेन। ही फील्स गिल्टी आई यूज टू डू सो मच वॉकिंग नाउ आई कांट, कि उसको दर्द का चिंता नहीं रहता, लेकिन ये चिंता रहती है कि अगर ऑपरेशन कराना पड़ा तो फिर क्या होगा। और जो वॉकिंग नहीं कर पाता उसका एक गिल्ट रहता है। और उसका वेट भी 3 kg लॉस्ट हुआ है। ही क्वेश्चंस वेदर इट विल गो और नॉट। वो उसकी वाइफ से बोलता है कि अब अरे ये जाएगा कि नहीं अभी। ही स्पीक्स एग्रेसिवली टू अदर्स बट लेटर ही रिग्रेट्स अबाउट दैट, कि हमारा परिवार बड़ा है तो एग्रेसिवली बोल देता है, लेकिन बाद में उसको अफसोस होता है। देन वो मेरे से ये भी पेशेंट बोलता है कि आपने मेरे सर को ट्रीट किया था, पटेल सर को, जो 8 साल पहले उनके जो सर थे जिसके उधर मैं ओपीडी में इंटर्नशिप में सीखने जाती थी, राजकोट टीबी चेस्ट डिपार्टमेंट में। उनके सर जो एचओडी थे, तो उनको बीच में बैकएक हुआ था, ऑपरेट हुआ था, फिर भी पेन रहता था। तो उनको भी ऐसा था कि वो डिप्रेशन में आ गए थे पेन की वजह से। तो उनको होम्योपैथी से आराम हुआ था। तो वो भी मुझे उन्होंने बताया कि आपको आपकी दवाई से उनको आराम हुआ था। और फिर मेरे से फोन पे बात करने के बाद मेरे हस्बैंड से बात करते हैं, तो वो उनको बोलते हैं कि मुझे डायना पे ट्रस्ट है, शी विल ट्रीट मी। और अगर उनका फैमिली स्टेटस देखे तो हिज फादर डाइड बिफोर 3 years। आफ्टर दैट ही गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली बीइंग एल्डर। ही गेट्स एंग्री एंड देन रिग्रेट। तो वो 3 भाई है, 3 सिस्टर है बड़ी। भाइयों में वो एल्डर है। तो फादर के जाने के बाद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। बोथ ब्रदर्स आर यंगर टू हिम, लिविंग विथ वाइफ एंड 2 daughters। बट जो उसकी एल्डर डॉटर है, शी इज हैविंग नाजल ट्वाइंग। सो बोलने में वो क्लियरली नहीं बोल पाती। सो वरीड कि वो बोली कि ये जमाने में जो पर्सन बोल नहीं पाता तो उनका क्या होगा, वो मुझे चिंता होती है मेरी डॉटर की। तो अभी फॉलोअप सुन लेते हैं पहले, या एनालिसिस करना है डॉक्टर मानसी? लेट्स लिसन टू द ऑडियो। कैन यू सी द स्क्रीन? नमस्कार, मैं डॉक्टर परेश अमेठिया राजकोट से बिलोंग करता हूँ। आज से 2.5 साल पहले मार्च 23 में मुझे पेन चालू हुआ था, जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बोथ थाई एंड बोथ ग्लूटियल एरिया में था। एमआरआई कराने पर इस्चियोफीमोरल इम्पिंजमेंट डायग्नोसिस हुआ, जो बायलेटरल था। उसके बाद उसके लिए मैंने बहुत सारे एनसाइड लाइक डाइक्लो, निमेसुलाइड, एसिक्लोपेरा, ट्रामाडोल, गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन वगैरह 3 महीनों के लिए दवाइयाँ खाई, लेकिन मुझे कुछ फर्क महसूस नहीं हुआ। जो पिछले 10 साल से सुबह में 5 to 6 किलोमीटर ब्रिस्क वॉकिंग करता था, वो भी बंद हो गया। बाद में मैंने अहमदाबाद जाके यूएससी गाइडेड स्टीरॉइड इंजेक्शन भी लिया, बहुत साइड इंजेक्शन ट्रायमसिनोल।
2 बार लिया वो 1 महीने के गैप के बाद, लेकिन उससे भी कुछ खास फर्क महसूस नहीं हुआ। मेरा पेन वैसे के वैसा था, जो मुझे डे टू डे एक्टिविटीज में भी इंटरफियर कर रहा था। बाद में मैंने गांधीनगर में डॉक्टर डाइना नाइक को कंसल्ट किया। उसने मेरी हिस्ट्री अच्छी तरह लेके मुझे होम्योपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। उनसे ग्रेजुअली मुझे पेन में फर्क महसूस हुआ। धीरे धीरे पेन की इंटेंसिटी कम होती गई एंड टुडे आई एम टोटली पेन फ्री। अब एपिसोड भी बहुत कम हो गए हैं और मैं रोज सुबह 4 से 5 किलोमीटर वॉक भी करता हूँ। थैंक यू। So if someone cannot understand Hindi, this is follow up in English. Dr. Mansi, can we take the participants, their analysis? Dr. Mansi? Can you see any medicines in chat? Sulfur calcarea. Any other? Anxiety future about fear laughed and mocked. सही है, ये rubric सही है, but medicine is nearby. Sulfur and good. Okay. So you are able to see follow-up slide. So congratulations. किसने बोला था लेकेसिस? The medicine given is lecasis. Dr. Sneha, congratulations. You can cure this rare disease. So let's see the rubrics which I have taken. फर्स्ट जो लिया था मैंने अम्यूजमेंट डिजायर फॉर, कि देखिए इनको इतनी सारी तकलीफ है, मीन्स तो उसकी एनर्जी कहाँ जाती है? ना ही उसको क्लिनिक की चिंता है, ना ही फैमिली इतना बड़ा है उसकी चिंता है। उसका कंसर्न यही था कि जो मेरा बेस्ट टाइम था मॉर्निंग वॉक का, अभी वो नहीं कर पा रहा हूँ, जिसमें फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक होता था, जो पूरे दिन का बेस्ट पार्ट था, वही मुझसे छीन गया। ओके, सो अम्यूजमेंट डिजायर फॉर डिल्यूजन लाफ्ड एंड मॉक्ड एट बीइंग, तो ये रूब्रिक सही लगाया सबने कि लोग अभी मुझ पे हंसते, पहले मैं सबकी मजाक उड़ाता था, अभी वो मेरी मजाक उड़ाएंगे, तो एक एनिमल की थीम आ गई। देन होपफुल, तो वो होपफुल भी थे कि आपकी दवाई से मुझे अच्छा हो जाएगा। एंड मोकिंग, तो उसका जो स्वभाव मजाकिया था, क्योंकि मैं उसको पहले से जानती थी, आई कुड इजीली गेट टू दिस रूब्रिक। देन लेमेंटिंग अबाउट पेन, ये क्या था कि एवरी टाइम वो जो फोन में मेरे से या मेरे हस्बैंड से बात करते थे, ही यूज्ड टू टॉक लाइक दिस कि अरे भगवान ने दे देकर ये कौन सा रोग दिया कि जिसकी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, फ्रैक्चर होता, ट्यूमर होता, कुछ कर देते हैं।
कि रिमूव कर देते हैं, 1-1.5 महीने में सही हो जाते, लेकिन इसका तो कुछ इलाज ही नहीं है. Then vivacious, he was full of energy because I know him personally. I can see he's is full of energy and enthusiasm. Doubtful about recovery, कि ये अच्छा होगा कि नहीं होगा, जो उसकी वाइफ से बात कर रहा था कि क्या होगा. देन बिजनेस अवर्जन टू, कि जब पेन होता है तो लगता है कि पेशेंट ना आए या फिर कम आए. तो ये सब रूब्रिक पे मैंने उसको लेकियसिस दी थी. और अगर रिट्रो में देखें तो काफी और भी रूब्रिक्स हमें मिलते हैं लेकियसिस के, कि डिल्यूजन चार्म्ड एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल. तो ये मैंने पहले लिया नहीं था, लेकिन जब मुझे केस कहीं रिप्रेजेंट करना था, देन आई हैव लिसन दैट ऑडियो. एंड उसमें उन्होंने जो लास्ट में बोला कि मेरे पटेल सर को भी आपने ठीक किया था, तो मेरा भी ठीक कर देंगे. सो ही वॉज चार्म्ड कि हमारे सर का इतना तकलीफ था और कहीं अच्छा नहीं हो रहा था. तो ये मुझे पीछे मीन्स रेट्रो में ये रूब्रिक मिला था. देन होपफुल, कि जो मैंने वो ध्यान दे के सुना नहीं था कि मेरे हस्बैंड को भी उसने फोन में ये बोला था कि मुझे पता है मुझे डायना की दवा से ठीक हो जाएगा. देन एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव, कि वो जो उनके फ्रेंड्स थे जो इतने मीन्स कॉलेज में साथ थे, उन्होंने लव मैरिज किया तो साथ में रहते थे, तो हर जगह घूमने जाना, मूवी देखने जाना, खाना खाने जाना, एक दूसरे के घर पे उनके बच्चे भी रहते थे, इतने क्लोज थे, और उनका डिवोर्स हो गया. तो जो भी था सब उसका लाइफ का मजा चला गया, जो एम्यूजमेंट था उसकी लाइफ का वो चला गया. और फिर वो दोस्त उससे कम बात करने लगा, और उसको ये था कि बीइंग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर उसको मुझे इसमें कुछ हेल्प करना चाहिए था, और वो नहीं किया. सो ही गॉट डिसअपॉइंटेड कि उसने कुछ किया नहीं. उसने तो ऐसे ही बोल दिया कि कोई फ्रेंड्स थे, मुझे इसको एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं. देन एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, कि वो डिसअपॉइंटमेंट था और डिसअपॉइंटमेंट लव दोनों. एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर, कि क्या होगा, मीन्स अगर ऑपरेशन करेंगे सही जाएगा नहीं जाएगा, इनकंटिनेंसी, ये वो सब चीजें रहती है. देन एंग्जाइटी अबाउट ओन हेल्थ. देन एब्रप्ट हार्श, कि उसने वाइफ ने बोला कि कुछ भी हो फैमिली में तो बोल देते हैं, फिर भले पीछे से पछताओ, लेकिन वो एग्रेसिव है. देन बिजनेस अवेजन टू कम्युनिकेटिव. सो पेशेंट से जब मैंने बोला तो ऐसा बोल कि नहीं मैं तो इतना सोशल नहीं हूँ, इतना बोलता नहीं हूँ, लेकिन ही इज वेरी कम्युनिकेटिव. जैसे मेडिसिन लेने मेरे घर भी जाए, मेरा पियर राजकोट में है, तो उसका तो क्या है, उसके फ्रेंड का ससुराल है, लेकिन वो उधर भी इतने मिंगल हो जाते हैं सबके साथ. मेरी भाभी ने अगर कुछ बनाया है पानी पूरी, तो अगर वह कहे तो पानी पूरी भी खा लेंगे. उस वहां एक बेरी का पेड़ है, तो उसमें से बेरी भी तोड़ के खाएंगे. तो ही इज वेरी इजी टू मिंगल विथ, सबके साथ इजी से जेल हो जाते हैं. देन कंप्लेनिंग ऑफ डिसीज, की जो अपनी वाइफ से वो कंप्लेन करता था जब भी दर्द हो, कि अरे आज मुझे ये दर्द हो रहा है. देन कॉम्प्रिहेंशन इजी, तो आपने जैसे ऑडियो सुना नहीं, लेकिन जो भी मैं उसको बोल रही थी, कि थोड़ा मैंने उसको काउंसलिंग भी किया, तो वो इजी से समझ जाते थे मेरी बात तुरंत ही, कि हाँ हाँ. मैंने बोला कि अगर आपका जो एलिमेंट से आपको डिजीज है, अभी आप इसकी स्ट्रेस रह रहे हैं, तो ये एक विशियस साइकिल चलता रहेगा. तो बोले कि हाँ ये तो सही है, विशियस साइकिल है, तुरंत ही. तो ये एकदम अलर्ट रहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इजी होता है लेकेसिस पेशेंट में. देन डिल्यूजन डूम बीइंग, बिलीविंग वनसेल्फ टू बी फेटेड फॉर डिजास्टर, कि अभी ये क्या हो गया. डिल्यूजन फ्रेंडलेस ही इज, कि अभी कोई उसके जो फ्रेंड थे वो नहीं रहे, जो क्लोज थे उनका डिवोर्स हो गया, और ये वॉकिंग में नहीं जा पा रहा, तो अभी सोशलाइजेशन उसने बंद कर दिया. देन डिल्यूजन रॉन्ग डन रॉन्ग ही हैज,
कि मुझे ये सब चीजें करने की क्या जरूरत थी, मैं सिमेट्रिकल बॉडी थी मेरी, इतना साल से मैं जो वॉकिंग ये सब चीजें कर रहा था, इसकी मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी। तो ये सब चीजें हमने रेट्रो में देखी। देन एनवी, तो ये बोर्डम रहती है कि असंतोष की भावना रहती है कि अरे ये अच्छा नहीं, ठीक नहीं है। एनवी एट द क्वालिटीज ऑफ अदर, कि एनवी, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट एनवी विथ जेलसी। लाइक एनवी वाले को होता है कि दूसरों, जैसे वो बोल रहे हैं ना कि अरे ये सब 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल पा रहे और मैं नहीं कर पा रहा। तो दूसरों की जो क्वालिटीज है उससे वो एनवियस होते हैं। देन फोर सेकंड फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ बीइंग अबैंडन, तो ये अगर हम देखें ना तो फोर सेकंड डेजर्टेड फीलिंग जो एनिमल में पाई जाती है। देन मॉकिंग, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, मुझे पता है कि वो उनका स्वभाव बहुत ही मजाकिया है, कुछ न कुछ सार्काज्म में भी हम ले सकते हैं, मॉकिंग सार्काज्म के कटाक्ष में कुछ कह देना, सुना देना और मजाक भी कर लेना। तो ये उसका नेचर था। तो जो मेडिसिन मैंने दी, आई लेट्स सी फर्स्ट साइकोडायनामिक ऑफ हिप जॉइंट। जो जो ये हिप डिजीज रहते हैं, तो मेनली इसमें एंजाइटी डिप्रेशन रहता है, दैट नथिंग टू मूव फॉरवर्ड, कि अभी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं मूव फॉरवर्ड होने के लिए। when you have hip problem, it means you are living an emotional conflict in which it is difficult to maintain your position, or perhaps nobody obeys. Maybe your children do not do what they want and ignore you. No one phones and visits you, कि अभी कोई आता नहीं, कोई पूछता नहीं। तो उसके जो फ्रेंड थे, अभी उनका जो डिवोर्स हो गया, सब कुछ चला गया, पार्टी, बाहर जाना, घूमने जाना, मस्ती मजाक सब चला गया, और नो लॉन्गर सेलिब्रेट योर बर्थडे एज बिफोर। You have ceased to occupy the important position they formerly occupied and thus have lost your place in family, identity and strength. तो ये चीजें ऐसे रिफ्लेक्ट हुई and he go into depression. So medicine I have given, first I have given lachesis in 6 potency, 2 doses at 10-minute interval, and then followed by LM potency. तो मैंने फिर 30-200 दिया था SOS की, उससे आराम हो, लेकिन दैट डिडंट हेल्प। देन आई हैव स्टार्टेड विथ LM पोटेंसी एंड उसमें भी जंपिंग दिया था। आई थिंक LM1 दिया था, फिर 2, और उसके बाद फिर मेरे पास जो अवेलेबल नहीं था तो देन 4 एंड देन 8 ऐसे। तो 15 ड्रॉप्स BD ऐसे देती थी, फिर बंद रिड्यूस कर दिया था, 10 ड्रॉप्स कर दिया था, फिर पेशेंट ने अपने आप ही धीरे धीरे कम करके बंद कर दिया था। सो द एनिमल थीम, कि उसमें कॉम्पिटिटिवनेस और अट्रैक्टिवनेस रहता है। जो लेकेसिस पेशेंट है, बीइंग एनिमल, कि उसको ये था कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं मुझसे ज्यादा चल रहे हैं। देखो, बीइंग डॉक्टर अगर आप देखें कि उनका कोई और जगह कोई कंसर्न ही नहीं था, उनकी एनर्जी और कहीं जा ही नहीं रही थी। 3-4 बार उसने यही बोला कि जो मेरा वॉकिंग नहीं कर पा रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, ये लोग इतना चल रहे हैं, ये लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। तो जो कम्पिटेटिवनेस जो रहती है एनिमल में, वो एक थी, और अट्रैक्टिवनेस एंड डेजर्टेड फीलिंग, कि अभी अलग हो गया हूँ सबसे। तो ये सब चीजें लेकर मैंने लेकेसिस प्रिस्क्राइब किया था एंड उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला, आपने फॉलोअप में सुना ही है। सो दिस इज all for the lachesis, and I would like to say gratitude to Palvi Chaturvedi ma'am and my students Dr. Vishal Sadhu and Dr. Radhika Atora for helping me in preparing this beautiful slides. They both are doing MD, so thank you very much.
Thank you so much, ma'am, for this wonderful presentation. Thank you. Thank you. And I would like to ask from the audience if there is any question regarding the case we can discuss. Yes, any questions regarding disease condition or potency, medication, selection of medications, repetition of dose? So, ma'am, we have one question. Yes. Mayuri is asking how you chose to change potencies and repetition of 6 to 11 potency. ओके, देखो जब हम मेडिसिन देते हैं 6 महीने जब दिया तो उनका पेन कम हुआ, जो उनको वो पेन किलर ले रहे थे उससे भी उनको हेल्प नहीं हो रही थी। तो जब 6 दिया तो उनको पेन किलर बंद हुआ कि टॉलरेबल था। फिर जब बीच बीच में जब पेन होता था तो मैंने 30, 200, 1 ml जो दे के रखी थी वो किसी ने इतनी हेल्प नहीं की और रिपीटेशन की जरूरत थी। तो रिपीटेशन हम कब करते हैं, जब लगा कि अभी डिजीज का प्रोग्रेशन कम हो रहा है, कि जब अटक जाता है प्रोग्रेशन तब हम हायर पोटेंसी एक पोटेंसी अप करके रिपीट करते हैं। अभी जो रिपीट किया उसकी बार बार जरूरत पड़ती है, तो हम जैसे 1 ml 200 तो रोज कितनी बार रिपीट कर सके, तो जब फ्रीक्वेंट रिपीटेशन की जरूरत पड़ती है तब हम LM पोटेंसी देते हैं। तो किसी ने पूछा है कि वो कैसे देते हैं, तो डिस्टिल वाटर में हम जैसे 100 ml लिया तो उसमें 10 ड्रॉप्स SL के डालते हैं और जो LM पोटेंसी रहती है वो एकदम पोपी साइज ग्लोबुल्स में रहती है, तो 1 या 2 ग्लोबुल्स इनफ है। देन एवरी टाइम व्हेन पेशेंट टेक्स दिस मेडिसिन वी आस्क देम टू गिव 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। तो क्या करना है, एक हाथ में होल्ड करके दूसरे पाम में हम ऐसे 10 स्ट्रोक करते हैं। सो when he takes next dose the potency will increase than previous one. So usually I give 2 times, means 15 drops in the morning and 15 evening, but if patient says the pain is more, then I say then you are allowed to take it 3 to 4 times in a day. So हम जब रिपीटेशन ज्यादा जरूरत पड़ती है तब हम LM यूज करते हैं, और जैसे इसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है, स्किन इरप्शन जैसे सोरियासिस है, कैंसर है, ये सब डिसीज कंडीशन में LM potency gives wonderful results. Okay, ma'am. Thank you so much for this wonderful explanation. And Priyanshi is asking, how Yes. did you differentiate comprehensive, easy, and delusion charm in this case? कॉम्प्रीहेंशन इजी मीन्स वो समझ जाता है इजीली, और चार्म्ड क्या है, चार्म मीन्स जैसे मदारी जो बीन बजाता है और सांप डोलता है, मीन्स तो ये पेशेंट आपसे इतना चार्म हो जाता है कि वो आपके पास ही आएगा, कि उसको पता है कि आपने ट्रीट किया था। कि मैं जब MD कर रही थी तब नडियाद में मेरे एक नेबर थे, नर्स थे, तो उनको कुछ स्किन इरप्शन मेरे से अच्छा हुआ था। तो क्या हुआ कि एक बार उसके हस्बैंड को कोई तकलीफ हुई तो वो नडियाद से ऑल द वे फ्रॉम नडियाद टू गांधीनगर ड्राइवर को लेकर आए टू गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम मी। और बल्कि वो सिविल में जॉब करते, उधर डॉक्टर थे, सामने ही एक सीनियर होम्योपैथ थे, लेकिन बिकॉज शी वॉज चार्म फ्रॉम मी शी केम। तो ये डॉक्टर का भी ऐसा था। इनिशियली मुझे लगा कि मैंने जो मेरे सीनियर का राजकोट सजेस्ट किया था कि उनसे दवाई ले लो, तो नहीं ली, तो मुझे लगा शायद ईगो इश्यू होगा कि ये सेम ही विलेज के टाउन के है। लेकिन जब मैंने रेट्रो में उनका ऑडियो सुना तब मुझे रियलाइज हुआ कि उन्होंने ये मेंशन किया था कि मेरे सर को आपने ट्रीट किया था, कि उन्होंने 3 बार MRI कराए थे, रीऑपरेट किया था, फिर भी अच्छा नहीं हुआ, तो डॉक्टर क्या बोले कि सब सक्सेसफुल है, आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो एंटी डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब मेडिसिन चालू की थी साइकेट्रिस्ट से। तो फिर उनको जब ठीक हुआ तो बोले 8 साल पहले हुआ था, मैं तो भूल गई थी, लेकिन उसको ये चीज याद थी। तो दैट इज चार्म। एंड कॉम्प्रिहेंशन इजी मीन्स जैसे मैंने आपको कुछ बोला और आप तुरंत पकड़ ले, तो जैसे मैंने उनको फोन में बोला, ये देखिए जो आपकी डिजीज कंडीशन है ना,
तो कोई एलिमेंट से आपको डिजीज होता है, फिर अब अभी आप ये एलिमेंट्स का जो टेंशन ले रहे हैं ना, तो ये एक विशियस साइकिल चालू रहती है, आप इसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो वो तुरंत समझ गए कि हाँ ये विशियस साइकिल है। तो ये अलर्ट रहते हैं, लेकेसिस पेशेंट दे आर वेरी अलर्ट। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स आपको उसको इजी एक बार में समझ जाते हैं। इवन बच्चे भी है, बड़े भी है, बार बार बताना नहीं पड़ता। जैसे वो हर बार जैसे दवाई जैसा अभी भेजी तो तुरंत उनका फोन आ जाता था कि अरे ये आपने चेंज कर दिया, 15 ड्रॉप्स में से 10 ड्रॉप्स कर दिए। और जो उनका मजाक किया था, तो जैसे अभी मैं घर पे नहीं, मैंने फोन नहीं उठाया, एक बार मैं रास्ते में थी तो थोड़ा कटाक्ष भी करते थे, क्योंकि बोले कि मेरे हस्बैंड तो घर पे आ चुके थे, तब मैं लेट थी वो दिन। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं, मॉकिंग, सार्काज्म, जेस्टिंग। तो मे बी बिकॉज आई वॉज नोइंग दैट पर्सनालिटी, इट वॉज इजियर फॉर मी टू गेट टू लेकेसिस, कि इजीली पकड़ में आ जाती है। तो ये पेशेंट जब आपसे चाम हो जाते हैं तो आपको छोड़ते नहीं है, कहीं से भी आपके पास ही आ जाते, क्योंकि रिलीजियस में भी है, तो दे विल रिलीजियसली फॉलो यू। उन्होंने बोले फिजिशियन है, उसने मेडिसिन फॉलो अप सब रिलीजियसली किया है। वन मोर थिंग, लेकिन इसका मैंने उनका जो मोबाइल में हम प्रोफाइल डालते हैं, तो उसमें क्या लिखा है उसने, नेवर पोस्टपोन द जॉय। तो ये जो हम चीजें देखते हैं ना, कि जो आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है, कि नेवर पोस्टपोन जॉय। फिर एक बार हम राजकोट गए थे 7म 8म पे, तो तब वो अवेलेबल नहीं थे, तो मैं उधर मेडिसिन छोड़ के आई थी। फिर रास्ते में मेरे हस्बैंड ने मेरे बताया, देखो ये इसके फोटो, मीन्स उनके एक फ्रेंड अहमदाबाद से उधर गए थे, और वो दोनों जूनागढ़ में मीन्स गिर में मिल गए थे और पार्टी किया था। तो यू कुड नॉट आइडेंटिफाई हिम, कि उन्होंने जो आदिवासी करते ऐसा मेकअप, क्लोथिंग ऐसा किया था और इतना नाचे थे। तो दे नेवर पोस्टपोन द जॉय। तो मैं इतना हंसी, और फिर दूसरे दिन मैंने जब फॉलो अप के लिए फोन किया कि आपकी दवा उधर रखी है, तो बोले कि आज थोड़ा दर्द हो रहा है, फिर देन आई लाफ दैट। तो फिर कल थोड़ा कम नाचना था ना, तो बोला कि मैं इतना खुश हो गया ना, कि मुझे वो मेरा फ्रेंड, मीन्स सडनली हम होटल, एक ही होटल में मिल गए। वो अहमदाबाद से आया था, मैं राजकोट से गया था, तो वो मैं बहुत खुश हो गया। तो सी कि आपको ऐसा नहीं कि जब पेशेंट से बात करे तभी परसीव करना है। हाँ बिल्कुल। सब सब जगह आपको मिलते ही है, जो जो पर्सनालिटी है वो रिफ्लेक्ट करेंगी, उसकी एनर्जी कहीं छुपी नहीं रहती। तो बिल्कुल करेक्ट। जैसे उसकी प्रोफाइल में आप पिक्चर भी देख सकते, जैसे मैंने बोला कि उनका जो टाइटल अभी भी उधर वही है, नेवर पोस्टपोन द जॉय। तो लेके इस पेशेंट को हंसी मजा मस्ती जहां से मिले लूटना है। हम्म? वो फिजिशियन हो या कोई भी हो। तो प्रोफेशन में हाँ मत जाइए, पर्सनालिटी में थोड़ा रहिए, कि वो क्या उनका कंसर्न क्या है, अडेप्टेशन क्या है, उनका रिएक्शन क्या है कोई भी चीज को लेकर, उनकी हाँ। एनर्जी कहाँ जाती है। उन्होंने एक भी बार नहीं बोला कि मेरा प्रोफेशन, मेरे बच्चे। ओके मैम। एनी So एनी अदर that's क्वेश्चंस? no ma'am, that's all for today. ओके। Only a few attendees are asking that, ma'am, have you repeated MRI? जनरली पेशेंट को अच्छा हो जाता है, वो करते नहीं है। हाँ definitely yes ma'am, we have seen that. हाँ, और हाँ उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं है। मीन्स बिल्कुल, तो अभी जो पेशेंट। आपने ऑडियो सुना हो ना उनका, हम्म। तो अभी मैंने 2 दिन पहले उनका हिंदी में मैंने लिया है, क्योंकि पहले प्रीवियस मेरे पास गुजराती में था। तो हाँ हमारे हाँ। ऑडियंस के लिए मैंने गुजराती में लिया, तो ये बोला कि मैं सिम्टम्स फ्री हूँ, मैं 4 किलोमीटर चलता हूँ अभी, तो वी Okay. नीड एमआरआई। हाँ, so that's how wonderfully homeopathy works when we got the simile ma'am. ही इज पेन फ्री, ही इज नॉट टेकिंग हाँ, एनी काइंड ऑफ पेन किलर, एंड इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। that's really very impressive ma'am, and thank you so much for giving us your time and for sharing your such a wonderful case. And again, we learned the very beautiful remedy that's lachesis, and we learned the way of
detecting or just observation, we can say. That's why we should always remember for observing the patient very carefully. Thank And you. now Thank it's you, ma'am. time to wrap up, ma'am. Thank you so much. And take care, ma'am. This video will be very soon, will be live on the YouTube channel of Homepathy 360. Thank you Thank, so much, ma'am. thank you.